Good morning class. Today we are going to discuss about sulfur and its compounds. Students, in chapter 7, that is P block elements, we have discussed about nitrogen family, and in oxygen family we have seen some of compounds of oxygen, like we have discussed about dioxygen, we have discussed about trioxygen, that is ozone. Now we are going to discuss about sulfur compounds. Basically we will see about sulfur dioxide and sulfuric acid. Okay, how they are prepared and their basic chemical reactions. So student, talking about sulfur, okay, so if we are going to see its allotropic form, then it can form number of allotropes, but the basic two allotropes are alpha sulfur, you can say it as alpha sulfur, and beta sulfur. Okay, alpha sulfur which is in rhombic form, and beta sulfur that is monoclinic. Students, as allotropic form is not in your syllabus because of COVID-19, the syllabus has been reduced, but have an idea about the two forms, that is the alpha sulfur and the beta sulfur. And talking of alpha sulfur, that is rhombic sulfur, it is yellow in color. Okay, alpha sulfur is yellow in color and its melting point is 385.8 Kelvin and its specific gravity is 2.06. Okay, but talking about the monoclinic sulfur, so its melting point is 393 Kelvin and its specific gravity is 1.98. And students, rhombic sulfur that is alpha sulfur is insoluble in water. Alpha sulfur is insoluble in water, whereas the rhombic sulfur, okay, or the monoclinic, or you can say the beta sulfur, is somewhat soluble in carbon disulfide. Okay, and students, talking about monoclinic sulfur, it is stable over temperature 369 Kelvin, and conversely rhombic sulfur is stable below 369. So if we are moving above 369 Kelvin, then monoclinic sulfur is stable, whereas below this point the rhombic sulfur, that is alpha, is stable below 369 Kelvin, and above 369 Kelvin beta sulfur is stable. Now students, as we have said that we will discuss about some compounds and their reactions, so here we are seeing sulfur dioxide. Students, talking about sulfur dioxide, so its basic method of preparation is in laboratory. It can be obtained by reaction of dilute sulfuric acid on copper sulfide. Okay, basically it is formed by a reaction of dilute sulfuric acid on copper sulfide. So here is the portion for copper sulfide and here is the portion for dilute sulfuric acid. So basically the H plus and SO3 2 minus ions, we are just locating the ions only, they result in formation of sulfur dioxide, as you can see here. Okay. Now student, if we are going to see their physical and chemical properties, so they are very basic properties, and in your exams also these properties are asked. स्टूडेंट्स, इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं. जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस विथ अ पंजेंट ऑर्डर. इट इज़ अ कलरलेस गैस एंड हैज़ अ पंजेंट ऑर्डर. ओके, और ये क्या होती है, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है, द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ SO2 इज टेम्पररी एंड बेस्ड ऑन रिडक्शन. ठीक है, ये रिडक्शन के बेसिस पे है. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं SO2 H2O, यहाँ पे क्या हमें मिल गया, नेसेंट हाइड्रोजन. ठीक है, जो कि रिड्यूस हुआ है. कलर्ड मेटल की बात करें, कलर्ड मेटल, तो आप देख रहे हैं रिडक्शन होके ये कलरलेस मैटर में फॉर्म हो गया. नाउ स्टूडेंट्स, अगर कैटलिस्ट का प्रेजेंस होता है, इट गेट रिड्यूस्ड इनटू SO3. ठीक है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड में भी रिड्यूस हो जाता है बाय एयर विथ
विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में। मतलब ये जो हमें सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलेगा ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। नाउ स्टूडेंट, अगर इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आप देखेंगे कि अगर ऑक्सो एसिड्स जो हैं सल्फ़र के, ठीक है, ऑक्सो एसिड जैसे कि फॉस्फोरस के केस में भी होते हैं, जब आपने नाइट्रोजन फॉस्फोरस बना था, हालांकि ये भी सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं H3PO4 हो गया जो कि मोनोबेसिक है, डाईबेसिक है, ऐसे कई सारे ऑक्सो एसिड्स है फॉस्फोरस के। सिमिलरली सल्फ़र के भी ऑक्सो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, आपने इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाला है, जैसे कि H2SO3 है, H2SO4 है, H2S2O7 है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। अब स्टूडेंट, जो एसिडिक नेचर होता है ऑक्सो एसिड्स का, वो इंक्रीज़ करता है विथ इंक्रीज़ इन पॉजिटिव, या आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है तो ये भी क्या होते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। एक और कंपाउंड है हमारा, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसकी बात करें तो इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको 9 से ही बताया जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ किंग ऑफ केमिकल्स, दैट इज़ H2SO4। अगर इसके हम बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं कि पहली चीज़ H2SO4 इज़ कलरलेस और ये ऑयली लाइक लिक्विड होता है। सेकेंड थिंग, इट इज़ स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एसिड। आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही कोरोसिव होता है, इसकी वजह से ये भी कहा जाता है बच्चों को कि उसको अवॉइड करें, डिस्टेंस मेंटेन करें। और इसको क्या होता है, अगर कांटेक्ट में आप आते हैं तो ब्लिस्टर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, जब भी आपके स्किन के साथ ये कांटेक्ट करता है। थर्ड थिंग स्टूडेंट्स, जो सॉल्युबल सल्फेट्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, जबकि वैक्वेंस, जब एक्वस सॉल्यूशन जो होता है लेड और बेरियम सॉल्ट का रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, या आप यहाँ पे बेरियम सल्फेट का भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लेड सल्फेट का हमें क्या मिल जा रहा है, प्रेसिपिटेट मिल जा रहा है। अब स्टूडेंट्स, अगर बात करें इसके नेचर की, तो ये क्या है, बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब डिहाइड्रेटिंग, ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या करेगा, उस कंपाउंड में से -H2O वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा, ठीक है। इट चेंजेस सुक्रोज, वुड, पेपर एटसेट्रा इनटू कोक बाय डिहाइड्रेशन मेथड। तो अगर हम बात करें सुक्रोज की या पेपर वुड की, इन सब चीज़ों को ये क्या कर देता है, जब मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जब इसको हम ट्रीट कराते हैं कॉन्क H2SO4 के साथ तो ये कोक का फॉर्मेशन करता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं 12C, दैट इज़ ब्लैक मैटर, और साथ में बेसिक फेनोमेना क्या हो रही है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा है। इसके यूजेस की बात करें तो इट इज़ ऑफ मल्टीपल यूज़। ये रिफाइनिंग में यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम या मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में। अगर बात की जाए पिगमेंट्स, तो उनके प्रोडक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन इसको यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 18 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई इज वाटर नॉट एडेड टू H2SO4 फॉर मेकिंग अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डायाबेसिक, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे ही डिपेंड करता है, चूँकि ऑक्सो एसिड्स का कॉन्सेप्ट सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ ऑक्सो एसिड का ही कॉन्सेप्ट है। जब आप इसका ऑक्सो एसिड्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आप देखते हैं कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस फॉर्म में रखते हैं। और जब इसकी बेसिसिटी की बात की जाती है कि ये डायाबेसिक कैसे है, तो हम लोग जानते हैं कि जितना H+ रिलीज़ हो सके। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2 H+ रिलीज़ हो पा रहा है, इस वजह से ये क्या है, डायाबेसिक है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन के स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन में ये आपको ऑलमोस्ट 10th क्लास में भी ये चीज़ रहती है, और शॉर्ट नोट में ये तब भी आता है कि वाई वाटर नॉट एडेड टू H2SO4, मतलब अगर हमने टेस्ट ट्यूब में H2SO4 लिया तो उसमें वाटर क्यों नहीं ऐड करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स कई बार बताया गया कि ये जो रिएक्शन होगा वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होगी। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि अगर हम वाटर को ऐड करते हैं H2SO4 के बाद तो ये हम लोग को हार्म करेगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, हम लोग H2SO4 को ऐड करते हैं स्लोली इन वाटर, ठीक है। एकदम उल्टा केस है। अज्यूम करिएगा, हम सीधे सीधे बता रहे हैं, अगर आप सपोज़ करिए
ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने H2SO4 लिया हुआ है। तो इसमें अगर हम वाटर ऐड करेंगे, इसीलिए मैंने रेड सिंबल लिया, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक है, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। H2SO4 में वाटर को कभी नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ तब करते क्या है, करते हम ये हैं कि हम वाटर लेते हैं। हमने वाटर लिया, लेट मी ड्रॉ इट इन कलर ऑफ वाटर। अगर हमने टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में वाटर है, इसमें हम अब ऐड कर सकते हैं क्या, H2SO4, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, 1 2 3 ड्रॉप्स, और उसको शेक करते हुए सॉल्यूशन को, ठीक है, ताकि बम्पिंग या हार्मफुल इफेक्ट्स ना आए। ये प्रोसेस आप प्रेफर कर सकते हैं। सो दिस वॉज द 2 क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, ऑल्सो गिव नेसेसरी इक्वेशन। ये भी 18 में आया था क्वेश्चन कि सोडियम थायोसल्फेट बनाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखेंगे ये भी सल्फ़र का एक कंपाउंड है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको 2-3 स्टेप्स से गुजरना है। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट लेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे, और फिर आपको मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। फिर अगेन सेकेंड स्टेप में आप इसे फिर से सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कराएंगे, तो आपको मिलेगा NO2SO3। अगेन स्टूडेंट्स, इस NO2SO3 को आप सल्फ़र के साथ जब ट्रीट कराएंगे तो हमें सोडियम थायोसल्फेट मिल जाएगा। तो आपको दिमाग में बेसिक ये बनाना है कि सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या है। सो दिस इज़ Na2S2O3, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट का ये फॉर्मूला है, यहाँ के बेसिक 3 स्टेप में मिल रहा है। आप इसको, अगर आपको ऐसे जनरली नहीं याद होता है कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 3 बार 4 बार अपने कॉपी में राइट डाउन करिए, आपको एकदम अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, आपको कॉमन 2 स्टेप में दिख रहा है, सोडियम कार्बोनेट आपको ऐड करना है, ठीक है। पहले स्टेप में हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऐड अप किया है, ठीक है, और आपका मीडियम जो है, इस मीडियम में आपको क्या मिल जा रहा है, NaSO3, ठीक है। साथ में CO2 गैस रिलीज़ हो रही है। अगेन अब जब हमें NaCO3 मिल गया, फिर से हमने इसको अगेन किसके साथ ट्रीट करा दिया, Na2CO3 के साथ, तब हमें Na2CO3 मिला। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर में आपको मिलेगा। फिर तीसरे स्टेप में हमने इसे किसके साथ ट्रीट करा दिया, सल्फ़र के साथ, किसे, Na2SO3 को, तब हमें क्या मिल गया, सोडियम थायोसल्फेट। ओके, सो दिस वाज द 3 क्वेश्चंस। ये कंटिन्यूसली 2018 में आए हुए हैं। अगर हम कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लाइकवाइज राइट टू ऑक्सीडाइजिंग एंड टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ SO2। तो ऑक्सीडाइजिंग में आपको बस सीधे आपको उसके साथ रिएक्शन करके दिखा देना जहाँ पे वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में आपको रिड्यूसिंग नेचर उसका दिखाना है। तो आप सीधे देखेंगे, अगर हम SO2 ऑक्सीडेंट के रूप में लेते हैं, तो आप पहला ही देख पा रहे हैं कि H2S को क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। जब हम SO2 का रिएक्शन करा रहे हैं H2S के साथ, तो ये सल्फ़र को क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करा रहे हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ, तो ये मैग्नीशियम को भी क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, ठीक है। Mg को MgO में कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल अगर यहाँ पे आपको समझना है, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, जो कि क्या है, ऑक्सीडेशन। अब स्टूडेंट्स अगर इसके रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं, तो Fe3+ को Fe2+ आयन में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसके लिए सी रिएक्शन दिया हुआ है, और उसी तरीके से MnO4- आयन को Mn2+ में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे जो रिएक्शंस है, ये कॉमन नाइट्रोजन फैमिली के रिएक्शंस है। इसमें आपको कुछ अभी इसके रिस्पेक्ट में नहीं समझना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू क्लास।